Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Nursing Lectures. So today we will see the topic anemia in pregnancy, which is very important according to the OBGY point of view. Also in exams it is a very important topic. So first, before starting anemia in pregnancy, we will see what are the changes in iron metabolism during pregnancy. So when iron metabolism is happening in pregnancy, all parameters in pregnancy will decrease, okay, except the two T's. So which are those two T's? That is serum transference and total iron binding capacity, okay. And these serum ferritin, all other parameters will be increased. Other two T's will be, serum ferritin will be decreased, and except the two transferrin and TIBC, that will increase. So what is the most sensitive marker to decrease in iron deficiency anemia? That is serum ferritin. Why? Because this is the storage form of iron. So storage form of iron is serum ferritin. That is why this storage will decrease, and it is the sensitive marker if any patient is having iron deficiency anemia. What is the best RBC index or most sensitive RBC index? That is MCHC. Next is total amount of iron needed in pregnancy is 1000 milligram. So throughout the pregnancy, total amount how much iron is needed is 1000 milligram. Amount needed by the fetus is 300 milligram. So during delivery, how much iron is lost is 250 milligram. Okay, and also daily requirement of iron in pregnancy will be 4 to 6 milligram of iron per day. So 4 to 6 milligram of iron per day, that is divided in according to the trimesters. In first trimester 1 to 2 milligram per day is needed. In second trimester 4 to 5 milligram per day is needed, and in the third trimester you need 6 milligram per day. So we have taken it as a range 4 to 6 milligram of iron per day. Next is only 10%. So whatever a female is eating, okay, whatever dietary iron you are taking, from that only 10% is absorbed by the body. So if 10% is absorbed, and if mother is needing 6 milligram per day, that means you have to give into 10 times, then only this 6 milligrams will be absorbed into the body. That means you have to give her 60 milligram per day, which is next to impossible, okay. To fulfill this requirement, 60 milligram amount which should be taken is 60 milligram per day, and it is impossible to take orally. That is why iron supplementation is must during delivery. So we give iron supplementation through tablets. So that is why our government of India has launched this program, Anemia Mukt Bharat. Okay, Anemia Mukt Bharat program. So in this, what is the regime is, any non-pregnant woman will take one red pill per week, and a pregnant woman will take one red pill every day. So non-pregnant per week, pregnant every day. So what is the content of that tablet is 60 milligram of iron stored in ferrous sulfate form and 500 microgram of folic acid. So don't forget this dosage, that is 60 milligram of iron and 500 microgram of folic acid. When do we have to start this supplementation is 4th month. That is, we don't start in the first trimester of pregnancy, we start from the second trimester. That means the 4th month of pregnancy. You have to continue till 180 days of pregnancy, okay. Also continue after the delivery for 180 days. So throughout the pregnancy, from the 4th month of pregnancy, and after delivery also 180 days, okay. Why we are giving it after delivery? Because whatever lost iron is there, we are also storing iron whatever is lost, okay. So it will be used in further life, okay. One more thing is there, dose of folic acid, okay. So this folic acid supplementation starts 1 month before the pregnancy to prevent neural tube defects, and the dosage is 400 microgram.
It will be given till 3 months after the conception, that means first trimester. Okay, now we will see what is anemia in pregnancy. So already a mother is having anemia. Okay, this can be two types. One is physiological, one is pathological. So physiological means what? Due to hemodilution. Now what is hemodilution? In normal pregnancy what happens is the blood volume increases. ओके, सो ब्लड वॉल्यूम जब इंक्रीज होता है उसमें क्या इंक्रीज होगा? आरबीसी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और उससे 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज होगा. तो दैट मीन्स प्लाज्मा आरबीसी से ज़्यादा होगा, लिक्विड ज़्यादा होगा, इसलिए हीमोडाइल्यूशन होता है. ये नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में. तो इसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल. सेकेंड पार्ट इज पैथोलॉजिकल. सो पैथोलॉजिकल क्यों होता है कि मोस्ट कॉमन ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ओके, आयरन से हीमोग्लोबिन कम हो रहा है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, तब हम बोलेंगे इसको पैथोलॉजिकल. सो फिजियोलॉजिकल में HB ऑलवेज 11 ग्राम से ज़्यादा होगा, वो कभी 11 ग्राम से कम नहीं होगा. और पैथोलॉजिकल में हमेशा 11 ग्राम से कम होगा HB. मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है एनीमिया इन प्रेगनेंसी में? कोई भी आपसे पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एज HB लेस देन 11 ग्राम और हीमेटोक्रिट लेस देन 33%. सीवियर एनीमिया हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सीवियर एनीमिया को बोलेंगे HB लेस देन 7 ग्राम. वेरी सीवियर एनीमिया HB लेस देन 4 ग्राम. So this is clear. Now according to trimester wise if we see, so in first trimester the HB will be less than 11 gram and hematocrit will be less than 33%. Second trimester में HB less than 10.5 and third trimester में 10.5 to 11 होगा. तो HB 10.5 to 11 होगा. पोस्टपार्टम में कितना होगा? लेस देन 10 ग्राम और हीमेटोक्रिट होगा लेस देन 30%. सो ये क्राइटेरिया है एनीमिया का अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर वाइज. नाउ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी मैंने बताया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑलवेज. ओके, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द पेरिफेरल स्मीयर ऑफ द एनीमिया पेशेंट. ओके, अब ये देख रहे हो आप, ये दिस इज द नॉर्मल आरबीसी जहाँ पे जो आउटर रिंग है वो मोटी है, ठीक है, और इनर जो वाइट पार्ट है वो पैलर, वो एकदम छोटा है उसका डायमीटर. बट यहाँ पे जो है इसका इनर पैलर का डायमीटर देखो ये बड़ा है रिंग से. इसका मतलब क्या होता है कि ये हाइपोक्रोमिक है. ओके, इसका कलर कम है. ऊपर से माइक्रोसाइटिक मीन्स स्मॉल है ये साइज में, तो इट इज कॉल्ड एज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया. ओके, स्मॉलर इन साइज मीन्स माइक्रोसाइटिक, पैलर इन साइड मीन्स हाइपोक्रोमिक. सो स्क्रीनिंग फॉर एनीमिया कैसे करेंगे? स्क्रीनिंग फॉर एनीमिया हमेशा शुड बी डन इन ऑल प्रेग्नेंट फीमेल. ओके, बाय डूइंग कैसे करेंगे? CBC का टेस्ट करना है फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे और रिपीट करना है 24 to 28 वीक्स पे. क्या करना है? CBC टेस्ट करना है फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे, उसको और रिपीट करना है 24 to 28 वीक्स पे. ट्रीटमेंट क्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? या तो हम पेशेंट को ओरल आयरन दे सकते हैं, या तो पैरेंट्रल, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन. सो किस पेशेंट में हमें कितना देना है, क्या देना है, वो हम देखेंगे आगे. सो डोज क्या है? 2 आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स देना है एवरी डे. एनीमिया जिसको है उस मदर को 2 आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स देना है एवरी डे. इससे क्या होगा कि HB इंक्रीज होगा. कब होगा? 3 वीक्स के बाद. कितना होगा? 0.7 ग्राम पर DL पर वीक. ठीक है, टारगेट हमारा क्या है? 11 ग्राम. जब तक मदर 11 ग्राम तक नहीं पहुंचती हमें ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है. तो अभी देखेंगे फॉर एग्जांपल 20 वीक्स पे एक मदर आई है आपके पास, उसका HB है 9 ग्राम. ठीक है, उसका HB है 9 ग्राम. अगर आप उसको ओरल आयरन स्टार्ट करते हो 2 टैबलेट्स, ठीक है, अब आपको देखना है 3 वीक्स के बाद, दैट मीन्स 23 वीक्स पे देखना है उसका HB 0.7% से इंक्रीज होगा. दैट मीन्स 9 ग्राम से वो सीधा हो गया 9.7. उसके फिर वो एक वीक के बाद वो इंक्रीज होगा. ठीक है, एक वीक के बाद 0.7 इंक्रीज होगा. पहले तो 3 वीक में इंक्रीज होगा, फिर नेक्स्ट एक वीक में
0.7 इंक्रीज होगा। फिर 24 वीक्स पे 10.4 मिलेगा, 25 वीक्स पे आपको 11.1। तो हमारा टारगेट रीच हो गया। ओके, उसके बाद क्या करना है, जब टारगेट रीच हो गया उसके बाद हम उसको मेंटेनेंस डोज पे रखेंगे। मेंटेनेंस डोज क्या होता है, 1 टैब ईच डे। पहले थे 2 टैब्स ईच डे, अभी 1 टैब ईच डे। फिर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हम 1 टैब ईच डे देंगे। उसके बाद 180 डेज के लिए भी आफ्टर डिलीवरी देंगे। क्यों? क्योंकि हमें आयरन स्टोर्स को रिप्लेनिश करना है। तो फर्स्ट पैरामीटर क्या है, फर्स्ट पैरामीटर क्या है, टू इंक्रीज आफ्टर गिविंग आयरन। सबसे पहले हमें दिखेगा रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ रहा है। और राइज किस में होगा, आफ्टर 1 वीक ओरल फेरस। ओके, आफ्टर 1 वीक ऑफ ओरल आयरन राइज होगा। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन इज गैस्ट्राइटिस। ओके, अब पैरेंट्रल आयन को देखते हैं। ये इंडिकेशन है किसका, कब देंगे हम पैरेंट्रल आयन, ये देंगे नॉन कंप्लायंट पेशेंट। ओके, नॉन टॉलरेंट पेशेंट, अगर मदर को दिक्कत हो रही है ओरल आयन लेने के लिए, उससे परेशानी हो रही है या फिर वो नहीं ले रही है, तो हम पैरेंट्रल आयन देंगे। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ HB इन आफ्टर पैरेंट्रल आयन सेम होगा जैसे हम ओरल आयन दे रहे हैं 3 वीक्स के बाद 0.7 ग्राम पर DL पर वीक, सेम इंक्रीज होगा। मोस्ट कॉमन फॉर्म यूज इन पैरेंट्रल आयन इज फेरस सुक्रोज, बट बेस्ट क्या है, फेरस कार्बोक्सी माल्टोज। ओके, क्योंकि बेस्ट कार्बोक्सी माल्टोज है, बट हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। ओके, एनीमिया मदर को ऑलरेडी है, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम। माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया कैसे हम डिफाइन करेंगे, अगर मदर का HB मोर देन 7 है, तो मोर देन 7 मीन्स 34 वीक्स से कम देखेंगे, जेस्टेशनल एज देखेंगे मदर की। अगर मदर इज 34 वीक्स से कम है जेस्टेशनल एज, तो ओरल आयन देंगे 2 टैब्स। ओके, उसके बाद चेक करेंगे HB आफ्टर 3 वीक्स और 1 मंथ। अगर मदर 34 वीक्स से ज़्यादा है जेस्टेशनल एज, तो हम देंगे पैरेंट्रल आयन। ओके, पैरेंट्रल आयन देंगे। और अगर ओरल आयन देने के लिए मदर नॉन कंप्लायंट है, तभी भी हम पैरेंट्रल आयन देंगे लेस देन 34 वीक्स की मदर को। सीवियर एनीमिया में हम क्या करेंगे, सीवियर एनीमिया कब होगा, जब HB लेस देन 7 ग्राम होगा, तो उसमें भी 2 आएंगे। HB लेस देन 5 होगा, तो कोई भी जेस्टेशनल एज पे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही देना है HB लेस देन 5 में। अगर HB 5 to 6 ग्राम है तो क्या करेंगे, जेस्टेशनल एज देखेंगे, अगर मोर देन 34 वीक्स है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, अगर लेस देन 34 वीक्स है तो पैरेंट्रल आयन देंगे। ओके, so this is the most important chart of the today's lecture, that is management of anemia in pregnancy. I hope you understood today's class and it was easy also. Please subscribe for my channel and wait till the next topic comes. Thank you.